आशीष सौम्या सर का इसमें देखा है, बहुत ऑनलाइन रहता है, सबकी खबर रखा है। सर आप कॉपी कब लोगे चेक करने के लिए? बहुत जल्दी है। बुलाएंगे ना एक आध दिन कॉपी लेकर के सबको। चलिए, सो आई थिंक रिगार्डिंग ईशान एंड गब्बा जी बंद करें और क्लास शुरू करें। हाँ। So in the last class we were talking about waves, and especially we have a progressive wave that is equivalent to a sin r cos omega t minus kx. इस पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव एंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए पैरामीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ये विजुलाइज है, दिख रहा है सबको? बोर्ड में जो लिख रहा हूँ दिख रहा है? हाँ। So this is the displacement of particle of medium. This is the maximum displacement, and so the oscillations of medium and velocity of that particles of medium, it is interpreted by these two parameters y and a, and the properties of that progressive wave, it is shown by this phase parameter, phase angle parameter omega t minus kx, where omega is equal to 2 pi nu, then that is equal to 2 pi by t. So this is time period, this is the frequency, this is known as angular frequency, and k, it is wave vector, which is equal to 2 pi by lambda. So here this lambda, this is the wavelength, and by using this phase as a constant, this omega t minus kx is equal to constant, and सौम्या कुछ टेक्निकल इश्यू है शायद तुम्हारे इसमें? हेलो, so is unable to join. Okay, so this omega t minus kx is equal to constant, and just by differentiating this means in order to convert this in form of velocity, this omega dt minus k dx is equal to 0, and by solving for this dx by dt, it is equal to omega by k, and this dx by dt, since this is related to phase, so this is known as phase velocity. Phase velocity vp is equal to omega by k. So we have derived this, and this omega, by putting this omega is equal to 2 pi nu and k is equal to 2 pi by lambda, this vp is equal to 2 pi nu by 2 pi by lambda, this vp is equal to nu. So this is one conventional relation we are using so far in order to calculate the velocity and the frequency, and with the help of this frequency and lambda. Yes, Gaurav, कुछ कहना है? Okay, so now question is, and why this exercise we are trying to do is to calculate all these parameters or to visualize all these parameters in matter wave. So this is topic which is related to quantum physics, and we are discussing about matter wave. Matter wave जो कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, इस मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ दिस इज मास एंड दिस इज दैट मैटर वेव. सो मैटर वेव इज द wave associated with moving body, and we have derived similar calculations for wavelength. Now we will try to use this to calculate the velocity of matter wave. The question is, what will be the velocity of the matter wave? Matter wave की velocity क्या होगा? क्योंकि अगर कोई वो वेव है तो वेव से रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज उसमें होनी चाहिए. एक तो होनी चाहिए उसमें वेवलेंथ होनी चाहिए, जो कि हम लोगों ने मैथमेटिकली ड्राइव किया, इवन एक्सपेरिमेंटली बाय यूजिंग दैट डेविएशन गर्मर एक्सपेरिमेंट. वी हैव प्रूव्ड दैट wavelength is okay. We can measure wavelength and experimentally as well as theoretically by using de Broglie's hypothesis. The second step is its velocity. So velocity वाले टर्म में हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, और उस velocity को कैलकुलेट करने के लिए we have the concept of this wave function, the wave function का concept, and also by taking the derivation of this by using that differential equations, and we have that wave equation. तो हमारे पास wave function है, wave equation है, ये सब के सब हमने प्रोग्रेसिव वेव के लिए किया. इन सारे वेव फंक्शन, वेव इक्वेशन एज वेल एज वेलोसिटी, इन सब को हम मैटर वेव के लिए
फाइंड करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेलोसिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू यूज दिस. हम मान के चलिए कि जो प्रोग्रेसिव वेव का वेलोसिटी है वो मैटर वेव की वेलोसिटी है. तो मैटर वेव का फेस वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करें. अगर कोई ये उसके लिए यूजफुल है देन ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. So and matter is also progressive type wave. It is moving with that object. So let us use this formula. So the phase velocity of matter wave, let us use the same, that Vp is equal to nu multiplied by lambda. Let us use this. Now इसको थोड़ा हम एनालिसिस करके देखें कि फेस वेलोसिटी का एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला. सो फॉर मैटर वेव let us try to use that energy T is equal to h nu and energy T is equal to mc square, because that concept is coming from the concept of photon. So photon के केस में भी हम लोगों ने ये यूज किया था. So by comparing these two, this h nu is equal to mc square, so this is equal to nu is equal to mc square by h. mc square by h, is it? So just compare this, and the frequency nu is equal to mc square by h. And since generally we have observed this, the concept of matter wave is true for atomic subatomic level particles. और अगर इससे एटॉमिक सबएटॉमिक लेवल पार्टिकल्स को थोड़ी सी भी एनर्जी ले तो उसकी वेलोसिटी जो है वो रिलेटिविस्टिक रेंज पे पहुंच जाता है. तो ये जो मास है, दिस मास इज नॉट द रेस्ट मास, दिस इज द रिलेटिविस्टिक मास. एंड वी कैन राइट दिस m इज इक्वल टू वेयर m is equal to m naught by root of 1 minus v square by c square, because we are now in the region of relativistic. You can also use the same, but in relativistic अगर आप यूज करते हैं फिजिक्स ज्यादा क्लियर होता है. And this frequency nu it is equal to now m naught c square by h upon root of 1 minus v square by c. So this is the frequency, and let us have this as equation number 1. यहाँ तक क्लियर है? चेक द कैलकुलेशन. कहीं पे अगर मैंने मिस्टेक किया है तो प्लीज बताइए, और तुम लोग भी कैलकुलेट करके देखो. ऐसा नहीं है कि 3/4 क्लास के स्टूडेंट की तरह एकदम बिल्कुल उतार लिए. चेक द कैलकुलेशन योरसेल्फ एंड फाइंड दिस. आगे क्या सबका? मैं किसी का भी नाम लेके पूछना शुरू करूंगा. पीटर स्टीफेंस नाम दिख रहा है मुझे. यस सर. आगे ये नहीं सर, कर रहा हूँ. हाँ जल्दी. सर ये m is equal to m naught upon root of 1 minus c square upon c square कहाँ से आया? दिस इज द रिलेटिविस्टिक वन. हम लोगों ने जब रिलेटिविस्टिक फिजिक्स को हम जब बता रहे थे, आइंस्टाइन फिजिक्स, वहां पर हमने मास को बताया था दैट मास इज नॉट फिक्स्ड, इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, और इसको रिलेटिविस्टिक मास रिलेशन कहा जाता है. और हमने ये भी उस क्लास में नहीं कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10⁴ मीटर पर सेकंड से अगर ज्यादा हो जाए तो हमें ये मास यूज के फार्मूला यूज करनी चाहिए. अगर नहीं भी करोगे तब भी हमारे पास फाइनल रिजल्ट वही आएगा, बट हम रियल फिजिक्स में जाना चाहते हैं इसलिए हमने इसको यूज किया. m is equal to m naught by root of 1 minus v square. बहुत सारे बुक्स में इसी को लेकर के काम चला जाते हैं, लेकिन चूंकि हम फिजिक्स के ज्यादा करीब अगर कोई समझना चाहते हैं और एटॉमिक सबएटॉमिक लेवल जो पार्टिकल्स होते हैं उसको थोड़ा सा भी अगर आपने एनर्जी दिया तो वो रिलेटिविस्टिक फील्ड में घुस जाता है. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग रिलेटिविस्टिक मास हियर. ओके, सो दिस इज m is equal to m naught given by Einstein root of 1 minus. यहां तक हो गया? Yes sir. सभी का? Yes, sir. ओके, सो आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. So this in this relation is Vp is equal to nu multiplied by lambda. इसलिए पहला वाला टर्म मैंने ड्राइव कर लिया है. Nu is equal to m naught c square by root of 1 minus v square by c square. I have given this as equation number 1. अब सेकंड नंबर पे इक्वेशन देखें. सेकंड नंबर की इक्वेशन में हमें लैम्डा कैलकुलेट करनी है. So for lambda we have to use the Broglie relation. Obviously we are using this for matter wave.
So from de Broglie's relation, from de Broglie's relation, lambda is equal to h upon m multiplied by phi. This v is the velocity of this object, m is the mass. So lambda is equal to h upon mv. Again, we will use m as the relativistic one. So this lambda is equal to h upon m naught v root of 1 minus v square by c square. Check it. This is equation number 2. यहाँ पर m naught upon root of 1 minus v square by c square को मैंने यहाँ पर लिखा है. So h root of 1 minus v square by m naught v. Check this mathematics. आ गया? Yes, sir. Same. Yes, sir. सभी से आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. रागनी सिंह, Yes, sir. अनुज, Yes, sir. सभी से आ रहा है? तो आगे बढ़े. So this is equation number first में हमने frequency calculate किया. Equation number second हमने lambda calculate किया. Now we have to calculate Vp by putting the value of this nu from equation number 1 and from equation number 2 lambda. So by substituting nu from equation 1 and lambda from equation 2 into in this Vp is equal to nu lambda. चलिए वैल्यू पुट करेगा Vp की वैल्यू बताइए. तो Vp is equal to, let's do some mathematics. square by VRS, sir. C square by V. Yes, sir. C square by V. So this is C square by V. बाकी लोग भी चेक करो तो. सबका So C प्लेन square आना by चाहिए. Yes, sir. Yes, sir. Same are sir. C square by V. सभी से आ रहा है? C square by V. So this is this phase velocity. It is equal to C square by V. This is the mathematics. Now our next step is to know the physics. हम लोग मैथमेटिक्स को ऐसा टूल यूज करते हैं. कैलकुलेशन हमने कर लिया. कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास एक फाइनल आउटपुट आ रहा है. Vp is equal to C square by V. Now we have to search what is physics behind this. So we have this Vp is equal to. सर आप म्यूट हो गए. म्यूट हो गया. सर आवाज नहीं आ रही. सर आवाज नहीं आ रही. हेलो. अभी भी नहीं आ रही. हेलो. आ रही है आवाज? Yes, sir. So now let us take the interpretation of this. Since V is less than C, जो भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की स्पीड से लाइट की वेलोसिटी से बहुत ही कम होती है. So since V is much less than or less than, it is less than C. When this V is less than C, this is less than C. What it means? This Vp will be greater than C. Right? Think. The denominator, this is less than C. And numerator is C square. So obviously this Vp will be greater than C. Yes, sir. Okay? And as far as Einstein's statement is concerned, this is not possible, which is
नॉट पॉसिबल एज पर रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में कहा गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, किसी भी वेव की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से, लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। जबकि अगर हम ये माने कि दिस फेस वेलोसिटी मैटर वेव की वेलोसिटी है, तो ये लाइट की स्पीड से ज्यादा होगा, जो कि सही नहीं है। ओके ओके सर। अगर कुछ समय के लिए अगर सही मान भी लें, तो यहां पे देखिए इसमें क्या होगा। दिस मास m it is moving with velocity v and this v is less than c। हमने कहा ना कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी c से कम है, and this is the matter wave associated this wave and the velocity of this matter wave, it is we are representing this as vp, इसको हम vp मान के चल रहे हैं, and this vp is greater than c। तो होगा क्या, ये c की स्पीड से कम स्पीड से चल रहा है, मैटर वेव c की ज्यादा स्पीड से चल रहा है, तो ये जो मैटर वेव होगा उस ऑब्जेक्ट को छोड़ करके निकल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैटर वेव के डेफिनेशन में ही कहा गया है कि दैट मैटर वेव इज द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग बॉडी, उस मूविंग बॉडी के साथ एसोसिएट होकर के चलना है। ओके तो अगर हम मैथमेटिकली कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि vp की वैल्यू c से ज्यादा होगा, तो ये दो ढंग से गलत है। पहला, एक तो रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, आइंस्टाइन फिजिक्स में ये कहा गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, किसी भी वेव की वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती, यहाँ पर ये गलत आ रहा है। दूसरा, अगर हम मान भी लें कि ये सही है, तो ये यहाँ पर भी इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ आ रहा है। मैटर वेव का डेफिनेशन में कहा गया है कि मैटर वेव इज व्हाट, दिस इज द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग बॉडी। अगर इस बॉडी की वेलोसिटी c से कम है, मैटर वेव की वेलोसिटी c से ज्यादा है, तो ये मैटर वेव जो रहेगा वो उस बॉडी को छोड़ करके आगे निकल जाएगा। ट्राई टू थिंक। इसलिए हम फेस वेलोसिटी को मैटर वेव की वेलोसिटी नहीं मान सकते, क्योंकि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट पॉसिबल। सो फेस वेलोसिटी इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव। हमें इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कुछ और मैथमेटिक्स, कुछ और फिजिक्स करने की जरूरत सर है। सर अगर जो मैटर वेव है वो ऑब्जेक्ट के हाँ जी। साथ ही चलता है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ही मैटर वेव की वेलोसिटी होनी चाहिए ना। यस, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और मैटर की वेलोसिटी दोनों आइडेंटिकल होनी चाहिए, है ना, जो कि यहाँ पे गलत आ रहा है। यस सर। है ना, मतलब हमें नए सिरे से तो सर, उसको सोचने की जरूरत है, दूसरे कैलकुलेशन की जरूरत है। यस ऋषभ, सर हम लोग को और कैलकुलेट करने की क्या जरूरत, जब हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ ही वो वेव चल रहा है तो इक्वल ही होगा मतलब वेलोसिटी। लेकिन हमें प्रूव तो करना पड़ेगा ना भाई। ऐसा नहीं है कि हमने वो तो डेफिनेशन में डी ब्रोगली ने कह दिया कि मैटर वेव इज ऑलवेज एसोसिएटेड वेव, मींस मैटर वेव की वेलोसिटी जो है वो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए, ये कह दिया। वो तो स्टेटमेंट था, उसको मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक हम प्रूफ नहीं करेंगे हम कैसे सही मानेंगे। जैसे हमने लैम्डा का किया ना, वेवलेंथ हम लोगों ने किया ना, लैम्डा कैलकुलेट करके दे दिया था डी ब्रोगली ने, डी ब्रोगली वेवलेंथ के नाम से। लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद फिर जब वो एक्सपेरिमेंट के साथ सपोर्टिंग में आया तब जाकर हमने कहा कि यस वेवलेंथ इज ओके। वैसे ही कुछ और मैथमेटिक्स, कुछ और फिजिक्स के जरिए से हम मैटर वेव की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और उस वेलोसिटी को ये भी प्रूव करेंगे कि ये उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर है। देन स्टेटमेंट जो होगा वो फिक्स होगा, अदरवाइज जस्ट एक थ्योरेटिकल, एक गॉसिप टाइप स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमें फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत है। हम जो ऑर्डिनरी कन्वेंशनल जो रिलेशन चल रहा था, हमने पहले कन्वेंशनल रिलेशन को चेक किया। कन्वेंशनल जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के जरिए हम लोगों ने वेलोसिटी निकालने की कोशिश की, तो वो वेलोसिटी तो फेस वेलोसिटी तो c से ज्यादा हो गया, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। हमने उसको गलत साबित कर दिया कि हम जो कन्वेंशनल रिलेशन है उसका इस्तेमाल मैटर वेव की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए नहीं कर सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अब क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा इसको माइक्रोस्कोपिकली सोचने की जरूरत है। तो एक लाइन पे ये कहा जा सकता है कि दैट फेस वेलोसिटी इज नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव, क्योंकि ये इसकी स्पीड जो है वो लाइट से ज्यादा हो रहा है। तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ फर्दर, अब यहां पर थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिकली इसको सोचने की कोशिश की। थोड़ा ध्यान से सुनना है ना, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत कम बुक में मिलता है। और अगर एक्सप्लेनेशन भी होगा तो उसको बार बार पढ़ने के बाद भी तुमको समझ में नहीं आया एक्चुअली वो बुक क्या कहना चाहता है ना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है। तो दिस बॉडी, दिस इज दैट बॉडी जो हमने वहां पे ड्रॉ किया था,
the total mass of this body is m and this is moving with velocity v. So lambda हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, this lambda is equal to h upon m multiplied by ये हमारे पास अभी तक है। फेस वेलोसिटी हमारा फैल हो गया है। अब हम थोड़ा माइक्रोस्कोपिकली सोच कर देखें, दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ सो मेनी स्मॉल पार्टिकल्स। ये बॉडी जो है वो बहुत सारे पार्टिकल्स से बनी है। तुम लोगों ने 11th क्लास में रिजिड बॉडी का एक कांसेप्ट पढ़ा होगा। रिजिड बॉडी में ये कहा जाता है कि उसके सारे कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स जो हैं, ये सारे कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स इसी वेलोसिटी से मूव करता है, क्योंकि वो रिजिड है, एक दूसरे का जो पोजीशन है वो फिक्स है। ये स्टेटमेंट रिजिड बॉडी पढ़े हो 11th में? याद आ रहा है? यस सर। 11th क्लास में रिजिड बॉडी का डेफिनेशन दिया गया, दैट इज द रिजिड। व्हाई? बिकॉज़ interatomic displacement is fixed. Interatomic there is no displacement, it's rigid, it is fixed, position is fixed. तो हम एक रिजिड बॉडी ले रहे हैं और ये रिजिड बॉडी जो है वो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है और लेट्स से ये सारे पार्टिकल्स अगर आइडेंटिकल है और इसका मास जो है वो स्मॉल m के बराबर है। सारे पार्टिकल्स का जो मास है वो स्मॉल m के बराबर है। दूसरा स्टेटमेंट, दिस इज स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, कि रिजिड बॉडी मेड अप ऑफ सो मेनी स्मॉल पार्टिकल्स, आइडेंटिकल पार्टिकल्स, और ये सारे आइडेंटिकल पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो फिक्स है क्योंकि वो रिजिड है। लेकिन प्रैक्टिकली चाहे बॉडी कितना भी रिजिड हो जाए, कम से कम उसमें वाइब्रेशनल मोशन तो हो सकता है। तुम लोगों ने मोशन में पढ़ा होगा, तो मोशन जो है वो ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है। ट्रांसलेशन मोशन में ये होता है कि पार्टिकल जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसलेट हो रहा है, पोजीशन पे चेंज। दूसरा, ये पार्टिकल जो है वो रोटेशनल मोशन भी कर सकता है, रोटेशनल मोशन भी कर सकता है, लेकिन इन दोनों के लिए जरूरी है कि ये पार्टिकल्स फ्री हो, तभी ट्रांसलेशनल मोशन या रोटेशनल मोशन कर सकता है। लेकिन तीसरा और है जो रिजिड बॉडी में पॉसिबल है, वो कम से कम एक पार्टिकल जो है वो वाइब्रेशनल मोशन कर सकता है, अपनी मीन पोजीशन से वाइब्रेट हो सकता है। तो दिस इज दैट वाइब्रेशनल मोशन। सो ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। तो ये बॉडी रिजिड है तो इसमें कम से कम कुछ तो ट्रांसलेशन, कुछ तो रोटेशन, कुछ तो वाइब्रेशनल मोशन पॉसिबल है। मींस ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो सकते हैं, ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो सकते हैं, ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो सकते हैं, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन पे इसमें वाइब्रेशन पॉसिबल है। इससे क्या होगा कि जो वेलोसिटी हम ये कह रहे हैं कि m की वेलोसिटी v के आइडेंटिकल होनी चाहिए, दिस इज पार्शियली ट्रू। क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेट हो रहा है। थोड़ा सा इस चीज को रिलेटिव वेलोसिटी तुम लोगों ने पढ़ा होगा। रिलेटिव वेलोसिटी ध्यान में आ रहा है? यस सर। 11th क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा होगा। यस सर। तो अगर बाय द वे ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन ये इस ढंग से अगर वाइब्रेट हो रहा है, तो मीन पोजीशन से, बहुत ध्यान से समझना, मीन पोजीशन से जब नेगेटिव डायरेक्शन पे ये शिफ्ट होगा, वाइब्रेट होगा, उस समय उसकी वेलोसिटी जो है वो v से कम होगा, क्योंकि v तो इस डायरेक्शन पे जा रहा था, ये वाइब्रेट होकर किस डायरेक्शन पे हो रहा है ना? तो v की जो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो उससे कम होगा। अगर ये इस डायरेक्शन पे अगर कोई शिफ्ट हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। मींस ये जो पार्टिकल्स हैं, रिजिड बॉडी में जो पार्टिकल्स हैं, उसकी वेलोसिटी may be different from this v। चलिए थोड़े स्टेटमेंट लेवल पे लिख लेते हैं। फर्स्ट, the body of mass m is structured or made up of n small particles of identical mass m। ये स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। रिजिड बॉडी है वो साथ साथ लिखते चले जाना। दैट बॉडी इज, अपने सेंटेंस यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं लिखा उसको इन्वर्टेड कामा के साथ लिखना है। तुमको कांसेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो उस कांसेप्ट को अपने सेंटेंस में लिखो, तुमको इजीली याद रहेगा। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज रिजिड बॉडी n स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है और वो n स्मॉल पार्टिकल का मास जो है वो आइडेंटिकल है। ओके। सेकंड, हम वेवलेंथ, बिग बॉडी का वेवलेंथ अगर तो निकालते हैं, देन तो इसका जो एक्यूमुलेटिव जो वेवलेंथ होगा, सेकंड बिग बॉडीज वेवलेंथ, बिग बॉडीज वेवलेंथ ऑफ rigid body
rigid body of mass m moving with velocity v is lambda, that is given to h upon m multiplied by v. ये हम de Broglie's रिलेशन से जानते हैं. हो गया? जैसे जैसे होते जा बताते हैं. यहाँ तक हो गया? यस सर. बाकी लोग भी. Yes. मैं अचानक बोलूंगा भाई स्क्रीनशॉट शेयर करोगे. Yes, sir. गड़बड़ हो जाएगा. हाँ. Yes, So sir. this body of mass m, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. Yes, sir. पार्टिकल का इंडिविजुअल मास स्मॉल m है. एंड अगर हम ये माने कि वो रिजिड बॉडी बिग वेलोसिटी से मोशन पे है, तो लैम्डा दैट एक्युमुलेटिव बिग बॉडी का जो वेवलेंथ होगा, मैटर वेव का वेवलेंथ होगा, दैट इज h upon m. अब नेक्स्ट स्टेप में हम उस चीज को लिखने वाले हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इसकी वेलोसिटी v से डिफरेंट हो सकता है. So the third statement is third, the individual velocity of constituent जिससे बना हुआ है, स्पेलिंग देख लेना. constituents particles may be different from v. Reason? Because it is because it has random vibrational motion. It may have, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, it may have random vibrational motion. रैंडम इसलिए क्योंकि वो x एक्सिस में हो सकता है, y एक्सिस में हो सकता है, z डायरेक्शन पे हो सकता है, किसी भी रैंडम डायरेक्शन पर वाइब्रेशन हो सकता है. सो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल्स हैं, उस पार्टिकल्स की वेलोसिटी इस v से डिफरेंट हो सकता है. Let us assume it as v1, v2, v3 and so on vn. ये डिफरेंट हो सकता है. सो v1 से लेकर के vn तक उसके वेलोसिटी हमने अलग अलग ली. हाँ, क्लास में क्या हुआ? हेलो, हो गया? जैसा वो बताना. Yes, sir. Yes, sir. Done. हो गया सर. इसका मतलब समझ में आ रहा है ना क्या हो, एक्चुअली हो क्या रहा है. ये नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, सारे पार्टिकल का हमने मास आइडेंटिकल लिया हुआ है, लेकिन चूंकि इसमें वाइब्रेशनल मोशन होता है इसलिए इसकी वेलोसिटी इस v से अलग अलग होगा. अब अगर कोई वेलोसिटी अगर कोई हमने ले लिया है दैट v1 v2 v3, तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी अलग अलग होगा. सो फोर्थ, सिंस एक मिनट एंड corresponding wavelength of matter wave will be that lambda 1 is equal to h upon m1v m v1 का जो this is lambda 1
lambda 2 this is h upon mv2। मैंने मास को आइडेंटिकल रखा है, वेलोसिटी अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग है तो वेवलेंथ जो है वो अलग अलग होगा। lambda 3 टाइम्स h upon mv3 टाइम्स। क्या क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो हमने क्या किया, पार्टिकल से बना हुआ है, सारे पार्टिकल को चूंकि वेलोसिटी अलग अलग है इसलिए इससे जो करस्पॉन्डिंग जो मैटर वेव होगा वो मैटर वेव की मैटर वेव का वेवलेंथ अलग अलग होगा। मींस ये हम इस बिग वेव को छोड़ करके अभी फिलहाल इस वेव के बारे में छोड़ करके हम ये जो पार्टिकल्स हैं, इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल से एसोसिएटेड मैटर वेव के बारे में बात करें तो इससे एसोसिएटेड एक मैटर वेव हुआ, इससे एसोसिएटेड एक मैटर वेव। सो देयर आर सो मेनी waves corresponding to each and every particles having wavelength lambda 1, lambda 2, lambda 3 and so on. So we have the fourth statement, therefore so all particles will have the matter wave, individual matter wave are separate, individual matter wave associated। तो सारे पार्टिकल्स में अपना एक एसोसिएटेड इंडिविजुअल मैटर वेव होगा। ओके, यहाँ तक है? हर्ष, डी हर्ष, यस सर, हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। निशांत गुप्ता, यस सर। ओके, सो आगे बढ़े? जी सर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, हमने जो बॉडी था उस बॉडी को हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ मान लिया। सारे पार्टिकल्स में चूंकि हमने मास तो आइडेंटिकल रखा हुआ है, लेकिन उससे चूंकि उसका वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट हो सकता है क्योंकि वो वाइब्रेटिंग पैकेट है, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हैं, तो अलग अलग डायरेक्शन पे चूंकि वाइब्रेट होता है तो रिजल्टेंट जो वेव होगा वो रिजल्टेंट वेव भी अलग अलग होगा, दैट इज v1 v2 v3। अगर वेलोसिटी अगर अलग अलग है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो वेवलेंथ जो है वो भी अलग अलग होगा। हम ये कह सकते हैं एज अ होल कि सारे पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल डिफरेंट वेलोसिटी से मोशन में हैं, तो हर इंडिविजुअल पार्टिकल का अपना एक मैटर वेव होगा। अब ये इंडिविजुअल पार्टिकल का अपना एक मैटर वेव है। अब चूंकि वेव्स जब बहुत पास पास होते हैं तो तुम लोगों ने एक सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ा होगा। सुपर इम्पोजिशन आप ये पढ़े हो? Since body is compact, that is the matter wave associated with
microwave associated with particle सर वो AL की जगह LE होगा ना? अच्छा इसमें ये तो दिमाग कुछ और कह रहा था, मैं ये कुछ और रहा था, मैं सोच रहा था मैंने कुछ यहाँ पे मिस्टेक लिखा है। सो एसोसिएटेड विद पार्टिकल विल सुपरइम्पोज। तुम लोगों ने सुपरइम्पोजिशन, लाभ सुपरइम्पोजिशन पढ़े हो? अब हम मैथमेटिक्स करेंगे लाभ सुपरइम्पोजिशन से लेकर के इसको। मेरे को याद नहीं आ सुपरइम्पोजिशन किसको कहते हैं? अगर दो वेव हैं, दोनों वेव एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है, उसको हम सुपरइम्पोजिशन कहते हैं। लाभ सुपरइम्पोजिशन हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेव है, दूसरा वेव है, तीसरा वेव, चौथा वेव है। तो ये जो वेव्स हैं, ये वेव्स आपस में सुपरइम्पोजिशन होगा। तो इफ दिस इज वन वेव, दिस इज अनदर वेव, और तुम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन पढ़ा होगा। अगर ये दोनों अगर कोई सुपरइम्पोज करते हैं तो एक बड़ा वेव बन जाता है, इसको तुम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव कहा। याद आ रहा है? इंटरफेरेंस वाला चैप्टर याद करो, इंटरफेरेंस वाला लाइट में। यस सर। Yes. इंटरफेरेंस याद है? हाँ, तो Yes, इंटरफेरेंस sir. तुम लोगों ने पढ़ा होगा। अगर ऐसा एक वेव है, दूसरा वेव ये है, तो एक कंस्ट्रक्टिव में इस तरह से एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। डिस्ट्रक्टिव के केस में तुम लोगों ने अगर डिफरेंट फेज पे है तो डिस्ट्रक्टिव में इसका एम्पलीट्यूड घट जाता है, तो ये हो जाता है कंस्ट्रक्टिव। दिस इज कंस्ट्रक्टिव, और ये जो है दिस इज डिस्ट्रक्टिव। तुम लोग को याद होगा। लेकिन ये अगर रेगुलर वेव है तो हम तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये तो ये रेगुलर वेव है, कोई वेव v1 वेलोसिटी जा रहा है, कोई v2 वेलोसिटी जा रहा है, रैंडम है। इवन जो वेव्स का जो डायरेक्शन है वो एकदम पैरेलल हो जरूरी नहीं है ना? इसलिए ये सारे वेव्स मिला करके वी हैव रैंडम वेव्स। तो वी हैव रैंडम वेव्स, numbers of waves in and after superposition, one will have a big wave like this, and this is known as wave packet. इसको नाम दे दिया जाता है this is wave packet, because this is packet of waves. बहुत सारे वेव्स आपस में सुपरइम्पोजिशन हुआ, सुपरइम्पोजिशन होकर एक दूसरे के साथ अटैच हुआ और एक पैकेट बना है। तो दिस इज द पैकेट ऑफ वेव व्हिच इज नोन एज वेव पैकेट। इसको वेव पैकेट कहते हैं। सो व्हाट इज वेव पैकेट? सो द वेव पैकेट is a combination of resultant of, one can write resultant of superposition of matter waves associated with particles of the body. So this wave packet, this is packet, the resultant of superimposition of matter wave. इससे बहुत सारे पार्ट वेव्स हैं, इस सारे वेव्स सुपरइम्पोज होकर के एक बड़ा वेव बनाता है, और ये वेव का जो शेप होगा बिग वेव से कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव व्हाटएवर दैट, सो द रिजल्टेंट वेव दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ पैकेट। बहुत सारे वेव्स मिले हैं, इसलिए इसको कहा जाता है दिस इज नोन एज wave packet. So wave packet is actually the resultant of so many waves. चलिए इसको पहले लिखो, और थोड़ा कुछ डाउट हो तो पूछो। This is the packet of waves. Okay. Packet of waves of different wavelength.
वीडियो अटक गई शायद। हेलो वीडियो अटक गई क्या? अटक गई भाई शायद। वीडियो अटक गया लग रहा है। हाँ। व्यक्त हो गया क्या? हाँ पावर कट हो गई सर, ग्रुप में मैसेज किए हैं। वैसे भी टाइम हो गया, चलो। दिखा। चलो पाजी। लीव करते हैं मैं फिर, और क्या, सर तो है नहीं शायद। अब तक तो नहीं है। Join कौन Google सा असाइनमेंट Classroom था? for BEE assignment. Submit your assignment before 5 p.m. today. वे भाई असाइनमेंट क्या था? फिर असाइनमेंट। वही तो पूछ रहा हूँ, बी का कोई असाइनमेंट नहीं था भाई। अरे तो ग्रुप तो ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे? कोई असाइनमेंट कंप्लीट, कॉपी के अरे नोट सबमिट कॉपी कर देना। तो कॉपी का पीडीएफ भेजने बोला है। सर आ गए। ओके, यहाँ पावर कट हो गया। मैं अपने मोबाइल से ऑन हुआ, मेरे ख्याल से हम लोग तो आज का क्लास ओवर कर लिए थे, है ना? तो यस सर। कुछ अगर डाउट हो तो तुम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज मैं अपना डाउट असाइनमेंट में मैसेज कर ही देता हूँ। ठीक है? यस सर। तो नेक्स्ट यस क्लास में हम लोग जो है वो इससे रिलेटेड मैथमेटिक्स करेंगे। कंसेप्ट को थोड़ा सा और ओवरव्यू करके, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको मैथ्स करेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू। ओके सर, ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। सर। सर थैंक यू सर। बाय सर। चलो पाजी। बाय। अभी असाइनमेंट क्या है? अगला नहीं क्लास पता। किसका है भाई? अभी कुछ असाइनमेंट नहीं मिला है सर, कॉपी को बोले हैं कि पीडीएफ बना के सेंड करना है सर को। भाई किसकी अरे तो किसकी कॉपी कॉपी अभी कंप्लीट है? नहीं बना है ना यार। तो वो सर और से तो बात पीरियड ही करो। नहीं है। अरे अभी का तो सबमिट सर कर से सकते हैं बात यार, करो। भेज दीजिए कौन से सबमिट सब्जेक्ट करने के की लिए। कॉपी? बी ट्रिपल ई ये भाई। तो अलग है यार। अच्छा, किसी की भी कॉपी कंप्लीट नहीं है, अपनी भी नहीं है। इसमें सबमिट किस मैं में भाई करना है भाई? कर दिया हूँ। भाई आज तो सर का तेरा पीरियड ही है। नहीं, तो कहाँ से कॉपी जमा करें? वही तो ही सही भाई, तो उसी है। चक्कर में मैंने सर को लिखा भी नहीं याद कुछ। दिलाओ, सर का पीरियड नहीं है, सर को याद दिला दो। सर बोले थे 1 दिसंबर को चाहिए। मैसेज कर दो भाई, सर को बोल दो। बोल अबे आखिरी खड़ंगा क्लास देती है। भाई मैक्स खड़ंगा। है, अब मैक्स है। खड़ंगा। अरे यार, किसी को चैन उसका तो नहीं। नाम भी नहीं बुलवाया था। कुछ का नाम ही। अबे आज मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, हल्ला करेंगे। भाई आज ब्लर आ रहा है स्क्रीन, ठीक है? अभी आओ रिकॉर्डिंग आवाज ऑन नहीं आ है। रही आज भी। अभी रिकॉर्डिंग ऑन है। अबे यार।